एज पर IEC स्टैंडर्ड। ठीक है कि फर्दर इसकी डिटेल्स आपके पास ये मौजूद है कि यू हैव अ डिस्टेंस ऑफ दिस लोड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन board is 80 meters. It has two other power circuits, means it is not running alone. It has two other cables as well which is running alongside it. Plus the whole installation scheme is laid under a depth of कितना 0.8 मीटर। ठीक है, इतनी डेप्थ पे ये सर्किट जो है वो इन द ग्राउंड अंडर द ग्राउंड जो है वो ले किया हुआ है। एंड द सॉइल रेजिस्टिविटी इज़ 1.2, whereas the working temperature, the ambient temperature at the ground in the ground area under the solid surface of the solid surface of the earth is this much, 30 degrees centigrade. So how you are going to do, you are supposed to find out the size of the cable. In order to find out the size of the cable, first you need to find out the rated current or the full load current which it can bear by using this formula, which is P over radical 3 V cos theta. Power factor आप assume कर लो 0.8 if not given. बाकी rest of the parameters are already known to you. P is there and V is also there. But this is not what we require. We require the current according to which the size of the cable would be made or would be selected. So in order to do that, we would be derating this current value. So derating, what do you mean by derating of the current value? We mean to say that we have to adjust the data that is given to us. We have to consider resistivity, soil resistivity. We have to consider temperature which is operating under which it is operating. We have to consider the depth of the conductors. We have to also consider the power factor or the grouping scenario of the cables which we intend to lay underground. So how do we do? We derate this current value by using correction factors. So this is what we require. Once the derated current is found out, then we are going to use the cable table book again and then select the relevant size from the table selection columns. So which tables we are going to use? We are going to use the two standard tables. One is this one, Pakistan cable table book. For एक तो ये general book है which is a quite bulky document, 72 pages का है, but there is this another document which is this one. It is low voltage cable table book. So why we are using low voltage? Because at the moment the operating temperature is how much? 400 volts. तो ये हमने यूज़ कर लेना है। अच्छा, जो टेबल नंबर्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टेबल 4E AE would be used if you are using PVC unarmored cable with XLP insulation type multi-core cable which has the maximum temperature bearing capacity of 90 degree centigrade. अच्छा, इसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो है दैट इज़ IEC का स्टैंडर्ड केबल टेबल बुक विच इज़ BS ये रहा BS 776 IEC 60287. This is the standard cable table book which the Pakistan cable tables have used it and generated their own emulated tables. अच्छा, होगा क्या? करेक्शन फैक्टर्स हमें कितने लगाने? डिपेंडिंग अपॉन द डाटा दैट वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन फैक्टर फॉर सॉइल रेजिस्टिविटी. वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन फैक्टर फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर, फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द पावर सर्किट्स एंड फॉर द डेप्थ ऑफ द कंडक्टर्स इन द सॉइल. ठीक है जी, तो ये हमें फैक्टर्स लगाने हैं. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी आर अगेन गोइंग टू ओपन द केबल टेबल बुक. हमने लो वोल्टेज का खोल लिया है. रिमेंबर दिस पेज नंबर इज़ 38. अभी हम इस पे वापस आएंगे. अभी हम जाने लगे हैं करेक्शन फैक्टर के पोर्शन पे. वी हैव अराइव्ड एट द करेक्शन फैक्टर्स सेक्शन. अब देखें, इसमें से हमें टेबल सेलेक्ट करना है. वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द टेबल विच वी रिक्वायर. क्या होगा वो देखो. For rating factors for ambient air temperature, this is not what we require because our cables are laid underground.
rating factors for ambient ground temperature other than 20 degrees centigrade. We are operating at 30 degrees centigrade, obviously, so we would be using the relevant column. Go for 30 degree and take the column. Assume it on your own because the data is insufficient. Depending upon the nature of the installation, either select PVC insulated or XLPE. Here, the two things come into consideration. First is how much financial constraints do you have. If you have financial constraints, then go for PVC. If you want better insulating properties and you are operating at higher voltages and at higher temperature ratings, then go for XLPE. So it all depends upon your finances and the installation scheme. तो यहाँ से 30 डिग्री पे जाके हम करेक्शन फैक्टर ले लेंगे whether this column or this column. Second correction factor we would be using for the direct buried underground cables, but for soil thermal resistivity. See, this is the installation mechanism that they have referred to. किस तरह का reference mechanism है? Reference mechanism 3A directly underground है, और by using the conduits just like that. इसको इधर शो करा दो. Conduits. इसको हम trunking कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंकिंग. ये जो ब्लैक से दिखाया हुआ है, यही चीज़ अगर हम अंडरग्राउंड में केबल्स के अंदर ले जाके करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रंकिंग. ठीक है, तो ये रेफरेंस मैकेनिज्म पूरे इस डॉक्यूमेंट में डिटेल में मौजूद है. अभी हम सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, डायरेक्टली बरीड अंडरग्राउंड विदाउट एनी ट्रंकेशन एंड अदर इंस्टॉलेशन कंड्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी नोट कर लीजिए. द अपर कॉलम 1 और 1.5. आवर सॉइल रेजिस्टिविटी इज़ 1.2. ईदर टेक द एवरेज of these two and get the reading, या फिर 1.5 का एक कॉलम की corresponding value उठा लें आप. It's up to us whether you take the average because 1.2 lies in between this. So average करके दोनों का फिर factor arrive कर लो, या फिर 1.5 का directly nearest to 1.5 ये करो. It's up to you. एवरेज भी कर लोगे तो दैट इज़ अलाउड. अच्छा, नाउ कम्स टू द ग्रुपिंग ऑफ द कंडक्टर्स. कितनी ग्रुपिंग्स है हमारे पास? वी हैव 3 पावर सर्किट्स. तो यहाँ पर लिखा है फॉर वन सर्किट, वन मल्टी कोर सर्किट एंड द ग्रुपिंग ऑफ सर्किट्स और अ ग्रुप ऑफ मल्टी कोर केबल्स. यहाँ पर देखिए इतनी सारी इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स और मल्टी कोर केबल्स. बट सिंस वी डोंट नो वेदर वी आर सिंगल कोर और मल्टी कोर, सो वी कैन स्किप द ऑप्शन फॉर एट द मोमेंट कि हम मल्टी कोर यूज़ करें. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज़ सिंगल सर्किट, इट कुड बी मल्टी कोर और इट कुड बी सिंगल कोर सर्किट. बट दे हैव द ऑप्शन कि इनकी स्पेसिंग, इंटरनल स्पेसिंग कितनी है, वेदर दे आर टचिंग ईच अदर द 2 पावर सर्किट्स और दे आर लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर विच इज़ देयर इंटरनल डायमीटर, or whether they are lying at a distance of 0.125 meter or 0.25 meter. It's up to you. Now again, use your analysis, use your assumptions and take the value from the respective column. For example, if I'm saying that they are cables are touching each other, so you can, how many power circuits we have? 3. तो यहाँ से ये वाला 0.65. But if you are saying no, touching is not feasible, we can at least assume कि इनका 1 diameter distance apart है. यानी ये जो D है वो कितना है, जो इसका internal diameter है उसके corresponding इनका external distance और what we call it केबल टू केबल क्लियरेंस, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है. केबल टू केबल क्लियरेंस कितना है? 1 डायमीटर अपार्ट है. तो आप इस कॉलम से वैल्यू उठा लोगे. ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद द मैक्सिमम ऑफ द फैक्टर्स विच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन डाटा. अब चीज़ जो रह गई है, यहाँ पे आप ये फैक्टर्स उठा के इस करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. करंट की जो भी वैल्यू आ रही है इस वक्त, उसको डिवाइड कर लोगे तो करंट की वैल्यू फर्दर जो है वो डी रेट हो जाएगी. ठीक है, एक चीज़ रह गई है कि once we now the whatever the value comes, that is your desired current, rated current for the cable. इस रेटिंग का आपने केबल जो है वो उठाना है. What should be the value of the desired current? वो ये जो भी अभी आपने 4-5 फैक्टर्स उठाए हैं, then we multiplied all factor. Multiply all the factors and then divide with this value. Okay. Divide this value with that factor. With that multiplied factors. प्रोडक्ट ऑफ दोज फैक्टर्स. ठीक है, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी. अच्छा, द अदर थिंग जो मैंने आपको कहा था कि रिमेंबर द पेज नंबर कौन सा था, वो करंट रेटिंग आ गई है. आफ्टर डिवाइडिंग विद द करेक्शन फैक्टर्स वी गेट द वैल्यू ऑफ द करंट. अब आप जो है वो इस कॉलम मेथड सी आपका है, यानी क्लिप्ड डायरेक्टली है
परफोरेटेड ट्रे में, आपने ट्रे में रख के केबल को ले किया हुआ है, या फिर आपने जो है वो रेफरेंस मेथड डी लिया हुआ है डायरेक्ट अंडरग्राउंड इंडक्टिंग इन ग्राउंड और इन आर्मर्ड बिल्डिंग्स, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो हमारे पास 3 फेज सिस्टम है तो हम बोल देते हैं कि 1-2 सिंगल कोर केबल्स हैं, सिंगल फेज नहीं, हमारे पास 3 फेज सर्किट हैं, तो वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दी 1, 3 और 4 कोर केबल्स, 1, 2 और 3 कोर केबल्स, रेफरेंस मेथड ई। हम जो है वो अंडरग्राउंड की तरफ चले जाते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इन फ्री एयर, इट इज़ नीदर अ क्लिप्ड सर्किट। तो हम यहाँ से करंट रेटिंग की वैल्यू को जो भी आ रही होगी, फॉर एग्जांपल अगर आ रही है आपकी 239 आ रही है, इस 239 की वैल्यू पे आप कॉरिस्पॉन्ड करके आओगे, बोलोगे योर डिज़ायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी 95 mm²। दिस इज़ द एंड रिजल्ट दैट वी वांट टू अचीव। फिर एक और कॉलम है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप कॉलम। वोल्टेज ड्रॉप कॉलम जो है वो फर्दर इसके वोल्टेज ड्रॉप का नहीं आ रहा इसमें। दिस इज़ योर वोल्टेज ड्रॉप कॉलम, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टेबल। लेट्स से कि हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, XLP या PV शीटेड कर रहे हैं, सिंगल कोर 90 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। आपका जो भी mm² आया था, फॉर एग्जांपल कितना आया था 95, उस 95 के कॉलम में जाके आपने जो है वो 2 कोर नहीं है हमारे पास, 2 कोर सिंगल फेज 2 केबल्स टचिंग और स्पेस्ड। अगर हम आपने इनिशियली जो हमने अभी बात की थी कि वो टचिंग कंसिडर की हुई है, तो यहाँ से आप R का फैक्टर या Z का फैक्टर उठा लोगे और उसको नोट कर लोगे। उसको नोट करने के बाद आपने करना क्या होगा, आपने जो है करना है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू LIN ओवर इंटू VC/1000, ठीक है। यू नो द IN वैल्यू इज़ योर is the current which you have obtained after derating। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द केबल कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन से कितने मीटर अवे है, 80 मीटर अवे। तो इतनी लेंथ का आपने केबल यूज़ करना है, 80 यूज़ करना है। VC जो है वो क्या होगा आपके पास, VC जो है वो ये वैल्यू, अगर हमने टचिंग अज्यूम की हुई है तो मिली वोल्ट्स एम्पेयर पर मीटर वैल्यू जो है वो आपने 0.83 जो है वो उठा लिया। तो एंड रिजल्ट में वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर कि इतना इसमें जो है वो कंडक्टर में कितने % वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करेगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल द रिक्वायर्ड डाटा विच वी हैव ऑब्टेन्ड सो फार। सो दिस इज़ इट।